हेलो एवरीवन, आज हम उस चीफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर या आप ये कहिए कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, या ये कहिए कि जिसने राफेल फैसला सुनाया, या ये कहिए बड़े बड़े फैसलों पर जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, उस चीफ जस्टिस के बारे में मैं आज आपसे दिलचस्प बातें करना चाहूंगा। 3 अक्टूबर 2018 को मुल्क भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनने का शरफ हासिल हुआ था इन रंजन गोगोई को। इनका कार्यकाल 17 नवंबर 2019 तक रहा। रंजन गोगोई 18 नवंबर 1954 को आसाम के गांव डिब्रूगढ़ में पैदा हुए थे। इनके वालिद थे केशव गोगोई। इनके वालिद 1978 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। आप सोच रहे होंगे कि बात शुरू हुई थी रंजन गोगोई से। असल में बात यह है कि रंजन गोगोई ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इन तमाम फैसलों पर अपनी वजाहत कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि रंजन गोगोई के ये जो वालिद साहब विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से, ये आसाम के कुछ महीनों के लिए ये मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखे गए थे। अगर मैं आपको कहूं कि उनके मुख्यमंत्री के दौरान जब उनसे किसी ने सवाल ये किया कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री है, क्या आगे चलकर आपका ये आने वाली जो नस्ल है यानी आपका जो लड़का है, क्या ये भी एक मुख्यमंत्री बनने की राह पर चलेगा? तो उनके सवाल पर रंजन गोगोई के वालिद साहब ने यह कहा था कि मैं अपने बच्चे को एक मुल्क के जज बनने पर फख्र महसूस करूंगा, ना कि एक मुख्यमंत्री बनने पर। चलिए बात शुरू करते हैं रंजन गोगोई के बारे में। रंजन गोगोई को जब राज्यसभा की सीट मिली थी तो खूब हंगामा हुआ था। आप वीडियो में देख सकते हैं। Unfair, unbecoming of members of parliament. I, Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. Nothing will go on record except what has been permitted by the chair. We must all be aware. We know the constitutional position, we know the precedents, we know the powers of the President of India, and we should not do anything in the House. Whatever views you have, you can say outside your views that you are at liberty. Please, please. Good. Minister, Law Minister? Sir, no discussion, but we want to... this house has a great tradition of many eminent persons coming. उन पर तरह तरह के इल्जामात तो आयद किए ही गए थे। साथ ही अपोजिशन पार्टी का यह भी कहना था कि मुल्क के चीफ जस्टिस का और सियासत की एक पार्टी का एक मेल जोल होना ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। रंजन गोगोई पर यह भी इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने राज्यसभा की सीट जो मिली है उनको ये इनाम दिया गया है राम मंदिर और राफेल के फैसले सुनाने पर। यहां से हमारी बात बड़ी दिलचस्प शुरू हो जाती है मेरे नाजरीन। इस ताल्लुक से उन्होंने तमाम अपनी चुप्पी तोड़ दी है। You said that judges work extra hours for judiciary to finish off cases, but there are questions also about, and you talked about appointment also, and there are questions about your appointment also. Before your appointment, you were a dissenting judge. Then after your appointment, you are seen now. All the people who praised you during your appointment, you are now seeing as someone who favored the government, the existing government, BJP government, and as a quid pro, you got a Rajya Sabha membership. You had been attacked 2 days back in parliament by a member of parliament about certain allegations of misconduct against you. How do you react to these things? Because from being the favorite of certain group of people, you have now transformed into being the object of attack for certain group of people. Kaushik, you didn't waste time. You come straight to the point. Right. What is this attack? Does a judge or a former judge get cowed down by attacks? Will he be ever able to function if he is afraid of being attacked while in office or after office?
If a judge is made conscious that, look, you better do what I want. Otherwise, post-retirement, you will be attacked. In the media, India Today, NDTV 24/7, Indian Express, the web portals. We are telling you, conduct yourself the way we want, or else we will attack you. Can a judge get cowed down by that? Unfortunately, there are many who are succumbing. This is the real threat. So far as the attack on me 2 days back is concerned, perhaps you are referring to the statement made by a lady member of parliament. Moitra from TMC. A lady member of parliament. Well, what do you say? She didn't even have her facts correct. You are making an allegation. Have the courage to name the person. What do you react to a set of allegations where you are not even mentioned by name? और उन्होंने अपनी पूरी वजाहत के साथ इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में कहा है, मंदिर मामला हो या राफेल मामला हो, उन पर तमाम बातों पर उन्होंने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने सोचा था कि राज्यसभा जाकर कुछ तामीरी काम अंजाम दूंगा। रंजन गोगोई ने एक सवाल के जवाब में कहा है, सवाल यह था कि आपको जब राज्यसभा की सीट दी गई है 1 साल के अंदर और इस दौरान आपको राज्यसभा की सीट दे दी गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रंजन गोगोई का क्या कहना था, ये सुनिए। रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में कहा है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं किस पार्टी ने भेजा हूं या किस नेता ने भेजा हूं। मेरे पास कोई इंतखाबी हलका नहीं, पूरा मुल्क मेरे लिए एक इंतखाबी हलका है। अयोध्या मामला यानी राम मंदिर मामला, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, उनके फैसले सुनाने पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया, देख सकते हैं। रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में कहा कि लोग राम जन्मभूमि के फैसले को किसी हुकूमत की एक कामयाबी की तरफ देख रहे हैं। साफ लफ्जों में बताऊं कि उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद यानी राम मंदिर का फैसला जिसके हक में आया है, लोग इसको मोदी हुकूमत के सबसे बड़ी कामयाबी सोच रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी है। ये लोग एक अदालती हुक्म और एक सियासी पार्टी के फैसले के दरमियान बारीक फर्क नहीं कर पाती। रंजन गोगोई ने बात लफ्जों में ये की है कि अदालती हुक्म यानी अदालती फैसला किसी एक फरीक के लिए नुकसानदेह भी होता है और दूसरे फरीक के लिए फायदेमंद भी होता है। उन्होंने कहा, जिस वक्त आप फैसला सुना देते हैं, जिस वक्त आप जज होते हैं, उस वक्त आपके कुछ लोग दुश्मन भी हो जाते हैं और कुछ लोग दोस्त भी हो जाते हैं। राफेल के ताल्लुक से फैसले सुनाने पर रंजन गोगोई से जब ये सवाल पूछा गया तो रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में लोगों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बातें करना आसान, लेकिन जब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठते हैं तब मुश्किल होती है। उन्होंने कहा, अगर मेरी नीयत सही है तो फिर कितनी भी तनकीदें हो, इस पर मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता। और रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में यह भी कहा है कि राफेल मामला बेहद आसान था, सवाल जहाजों की खरीद को लेकर था। उन्होंने कहा, क्या हम जहाज की खरीद के लिए भी वही अमल इख्तियार करेंगे जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए इख्तियार करते हैं? उन्होंने कहा, मैं कहूंगा नहीं। एयरक्राफ्ट की खरीद में पैरामीटर मजीद सख्त होता है। साबिक फैसलों के सुनाने पर रंजन गोगोई ने कहा है कि राफेल मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि आपने जो ये फैसले सुनाए हैं और आपको पर इल्जाम यह है कि आप राज्यसभा की सीट आपको उन मामले में एक इनाम के तौर पर दी गई है, इसका जवाब देते हुए रंजन गोगोई ने साफ लफ्जों में कहा है कि मुझे थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए। जिसने अयोध्या यानी राम मंदिर और राफेल जैसे और सबरीमाला जैसे फैसले सुनाए, क्या जरूरी है कि वो मोल भाव करेंगे? रंजन गोगोई ने बड़ी कीमती बात कही है। अगर ये मोल भाव होता तो बहुत बड़ा होता। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट इसके लिए एक मोल भाव नहीं हो सकती। नाज़रीन, ये थी सोशल जस्टिस नेटवर्क की अब तक की रिसर्च। रंजन गोगोई की चुप्पी तोड़ने पर क्या क्या उन्होंने कहा है और कैसे किन अल्फाजों के साथ उन्होंने अपने बयान को इंडिया टुडे
चैनल पर इंटरव्यू दिया है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी हेल्प कीजिए। थैंक